السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک لینگویج کی آج کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا ہے مرکب وصفی یعنی موصوف صفت، اور اسی کے ساتھ مرکب اشاری یعنی اسم اشارہ اور مشار الیہ، اسی کے ساتھ اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ۔ اس کا استعمال آپ کے ترکیب میں ایز مضاف الیہ کے طور پہ ہوتا ہے۔ اس باریکی کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ ٹاپک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ مانا جاتا ہے، اکثر لوگ اس کے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، تو آج کی یہ کلاس آپ لوگوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری انفارمیشن وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹیلی گرام چینل ایک بنا ہے، جس سے آپ اس کے اعادہ کے لیے نظام اکیڈمی 22 نام سے ہے، آپ اس سے PDF حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو جو کلاس دی جا رہی ہے، جو پڑھائی جا رہی ہے، اس کا آپ ریویژن کر سکتے ہیں، کیونکہ ریویژن مسٹ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ہم لوگ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے دا مرکب الاشاری، مرکب الوصفی اور مرکب الاضافی یوزڈ ایز مضاف الیہ۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہم دیکھیں گے مثال کے ذریعے کہ ہمارا مرکب اشاری، مرکب وصفی اشاری میں ایک اسم اشارہ ہوتا ہے، ایک مشار الیہ، جیسا کہ آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھ رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ مرکب وصفی ایک موصوف اور دوسرا صفت ہوتا ہے، اور نمبر 3 مرکب اضافی یعنی ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اس کا استعمال یعنی ترکیب میں آپ کا مضاف الیہ واقع ہوگا۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل موجود ہے، اس میں کالم ABC تینوں کی مثال یعنی مرکب اشاری کی، وصفی کی اور اضافی کی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم پہلے چلتے ہیں، پہلے کالم میں A والے میں لکھا ہوا ہے دمیۃ ھذا الطفل۔ دمیۃ یہ آپ کا مضاف ہے، اس کے بعد ھذا الطفل، ھذا آپ کا اسم اشارہ اور طفل مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مضاف الیہ۔ اس کا ترجمہ ہوگا دا ڈال آف دس بوائے یا دس چائلڈ، یعنی اس بچے کی، اس لڑکے کی گڑیا۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ مضاف مضاف الیہ کی نسبت کو بیان کرنے کے لیے انگلش زبان میں ہم آف کا استعمال کرتے ہیں یا اپوسٹرافی ایس کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری مثال لیتے ہیں، صوتو آپ کا مضاف ہوا، اس کے بعد اسم اشارہ مشار الیہ کی ترکیب دونوں مل کر کے آپ کے مضاف الیہ واقع ہوں گے۔ ذالک الکلب یعنی صوتو مطلب وائس، دا وائس آف ڈیٹ ڈاگ، یعنی ذالک الکلب یعنی ڈیٹ ڈاگ۔ پہلی مثال ہو گئی، یعنی مضاف الیہ آپ کا ایضا مرکب اشاری یوز ہو رہا ہے۔ دوسری مثال ہم لیتے ہیں B کالم میں، اس میں دیکھیے
सुउरुन माने होता है वाल, यानी चार दीवारी के लिए अरबिक ज़ुबान में सुउरुन का लफ्ज़ आता है। क्या आता है? सुउरुन। सुउरु अलक़लअतिल हमराई। सुउरु मतलब वाल, द वाल ऑफ द रेड फोर्ट, यानी लाल किला जो कि दिल्ली में वाक़ है, उसको अरबिक ज़ुबान में अलक़लअतिल हमराई यानी मौसूफ़ सिफ़त। अलक़लआ आपका मौसूफ़ और फिर उसकी सिफ़त हमरा, यानी मौसूफ़ उसको कहते हैं जिसके बारे में अच्छाई या बुराई या उसकी कुछ क्वालिटी बयान की जाए, और जिससे बयान की जाती है वो आपका एडजेक्टिव यानी सिफ़त वाक़ होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। दूसरा देखते हैं मुअल्लिमु। मुअल्लिमु आपका मुज़ाफ़ है। मदरसतिन हुकूमियतिन, मदरसतिन नकिरा है, इसी तरह हुकूमतिन भी नकिरा है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि मौसूफ़ सिफ़त में मुताबकत पाई जाती है, इसलिए दोनों नकिरा हैं। इसका तर्जमा होगा द टीचर ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल, यानी एक सरकारी स्कूल के अध्यापक, एक सरकारी स्कूल के टीचर। अब हम लोग तीसरी मिसाल लेते हैं। ऊपर टाइटल में हम लोगों ने पढ़ा है कि मुज़ाफ़िले क्या वाक़े होगा, एक तो मुरक्कब इशारी यानी इसमें इशारा मुशारुन इलैह, दूसरा मुरक्कब वसफ़ी यानी मौसूफ़ सिफ़त, तीसरा मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। तीसरी मिसाल लेते हैं सी वाले कॉलम में। हातिफु, हातिफु माने फ़ोन। हातिफु इआदति तबीबी, द फ़ोन ऑफ द डॉक्टर्स क्लिनिक, यानी डॉक्टर की जो क्लिनिक है उसका क्या? फ़ोन। तो हातिफु आपका मुज़ाफ़ और इआदती ए मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़, यानी अगर आप हातिफु के एतबार से देखेंगे तो ये बनेगा मुज़ाफ़िले, लेकिन उसके बाद अगर आप तबीबी को देखेंगे तो ये मुज़ाफ़ बनेगा। तो इसकी दो कंडीशन हो रही, दो पोजीशन है, एक तो मुज़ाफ़ बन रहा है, एक मुज़ाफ़िले बन रहा है, यानी मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ कहते हैं। मुज़ाफ़िले है हातिफु के एतबार से और मुज़ाफ़ है तबीबी के एतबार से। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, इसको जहन में रखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इसको जहन में रखेंगे तभी ही इसका एराब सही से पढ़ पाएंगे और इसका वाविल साइन यानी इसका एराब आप लगा पाएंगे। हातिफु इआदती तबीबी, द फ़ोन ऑफ द डॉक्टर्स क्लिनिक। दूसरा क्या है? सेअरु, सेअरु साअती यदिन, साअती यदिन यानी रिस्ट वॉच, यानी ऐसी घड़ी जो हम कलाई में पहनते हैं, जैसे घड़ी है आपकी कलाई में, मैंने पहन रखी है, ये क्या है? ये साअती यदिन। और कभी कभी सा का लफ्ज़ भी आता है, वही मुराद ले लिया जाता है। तो रिस्ट वॉच, साअती यदिन। अगर सिर्फ सातिन कह दिया जाए तब भी आप वॉच लिख देंगे, तभी आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि वो जो दीवार घड़ी या अलार्म वाली होती है उसके लिए क्लॉक का लफ्ज़ आता है। तो रिस्ट वॉच यानी बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है। तो हमें यहाँ ये देखना है कि आपका जो सेअरु है, सेअरु माने होता है प्राइस यानी रेट, द प्राइस ऑफ अ रिस्ट वॉच। साअती यदिन मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले है, लेकिन इसको इस तरह लिखा जाता है रिस्ट वॉच करके, यानी इसमें ऑफ या अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता। तो इंग्लिश में जिस तरह यूज़ होता है उसी तरह हम यूज़ करेंगे, जैसा कि पिछली क्लास में हमने द फुटबॉल वाली मिसाल में पढ़ा है। अब आगे जो तीनों मिसालें हमने 3 कॉलम में पढ़ी हैं, अब इनको डिटेल से तफसील से इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि हम लोगों के जहन में पूरी तरह ये चीज़ बैठ जाए। अब हम आगे स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए, पहली यूनिट में यानी प्रीवियस यूनिट में हमने क्या सीखा था कि हमारा मुरक्कब इशारी, यानी इसमें इशारा मुशारुन इलैह के बारे में डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा था। इसी तरह मुरक्कब वसफ़ी यानी मौसूफ़ सिफ़त के बारे में, मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के बारे में हमने पढ़ा था।
जो कि अपना एक ग्रामेटिकल रूल यानी उनका ग्रामर के एतबार से एक रूल होता था। जैसे मुरक्कब इशारी में यानी इसमें इशारा का एराब तीनों हालत में सेम आता है, वो मबनी होता है। इसमें इशारा जो है आपका जो है मुअरब होता है, उस पे अलिफ लाम नहीं आता। ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिटेल से पढ़ रखी है। दूसरा मुरक्कब वसफ़ी यानी मौसूफ सिफत में जिन चारों चीज़ों में मुताबकत पाई जाती है, दोनों में सिमिलैरिटी होती है। इसी तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी में यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी में आपका एक मुज़ाफ़ एक मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, मुज़ाफ़िले पे अलिफ लाम और तनवीन आती है। इन सब चीज़ों को हमने डिटेल से पढ़ रखा है। अब आगे क्या है कि मुशारुन इलैह और मौसूफ सिफत और मुदाफ इनका एराब क्या होता है, टेंटेटिवली मतलब होता है, मतलब टेम्परेरी होता है। आपको मालूम है कि मुशारुन इलैह का एराब आमिल के एतबार से बदलता है, कभी हालत रफ़ई आएगी, कभी जर्री और कभी नसबी, लेकिन इसमें इशारा वो अपने हालत पे बाकी रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं होती। इसी तरह मौसूफ सिफत, इसी तरह मुदाफ भी है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि इस यूनिट में आप पढ़ेंगे कि किस तरह मुरक्कब इशारी, मुरक्कब वसफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी आपका मुज़ाफ़िले की तरह यूज़ होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब जो कुछ हमने तीनों कॉलम यानी ABC में पढ़ा है, अब उसका डिटेल से एनालाइज करते हैं, उसकी तहलील करते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं। पहले में क्या है, मुज़ाफ़। मुज़ाफ़ क्या था, आपका एक सिंगुलर वर्ड था, लेकिन आपका जो मुज़ाफ़िले था मुरक्कब इशारी था, उसमें से एक आपका इसमें इशारा और दूसरा मुशारुन इलैह। और इसमें इशारा आपको मालूम है अस्माए इशारा, इनका जो एराब फिक्स होता है क्योंकि ये मबनी होते हैं। आमिल के एतबार से इनका एराब तीनों हालत में एक ही तरह रहेगा, यानी नमी टल्लत, ज़मी टल्लत, बंदा नूर मोहम्मद नमी टल्लत, यानी कुछ भी अपनी जगह से बदल सकता है, लेकिन ये जो मबनी का एराब है ये अपनी जगह से नहीं टल सकता। पहाड़ भी टल सकता है लेकिन ये एराब इसका नहीं टलेगा, इसको आप याद रखिएगा। इसी तरह मुज़ाफ़िले का जो वाविल साइन है एराब है, एक कसरा होता है। और एराब कहाँ ज़ाहिर होता है मालूम है, एराब यानी लफ्ज़ के कलीमा के आखिरी हर पर जो आता है उसी को एराब कहते हैं, लास्ट लेटर ऑफ मुशारुन इलैह। मगर एक ही इसमें इशारा ऐन मुशारुन इलैह दोनों मिल करके क्या वाक़ होंगे, मुज़ाफ़िले वाक़ होते हैं, जैसा कि हमने कॉलम ए की पहली मिसाल में पढ़ रखा है। अब आगे हम चलते हैं। अब पहली मिसाल में हमने क्या पढ़ा था, इसको हम एनालाइज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था दुमियतु। दुमियतु माने होता है डॉल। द डॉल ऑफ हाज़ा तिफली यानी दिस बॉय या दिस चाइल्ड। तो दुमियतु आपका क्या बन रहा है, दुमियतु आपका मुज़ाफ़ और हाज़ा इसमें इशारा और अतिफली मुशारुन इलैह। हाज़ा किसी भी सूरत में हो, यहाँ हाज़ा जो है मुज़ाफ़िले बन रहा है दुमियतु के एतबार से, लेकिन इसका एराब हर सूरत में हाज़ा ही पढ़ेंगे। तो ये कुल मिल कर के मुज़ाफ़ हुआ और ये मुज़ाफ़िले और ये जो है इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिल कर के क्या बन रहे हैं, मुज़ाफ़िले। और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की तरकीबें है पहले कॉलम की। अब हम दूसरा देखते हैं, आगे बी वाले को देखते हैं। बी में हमने क्या पढ़ा था, बी में आपने दो मिसालें पढ़ी थी, उसमें एक आपका मौसूफ, दूसरी आपकी सिफत। वही कह रहे हैं कि मुरक्कब वसफ़ी का इस्तेमाल किस तरह हुआ है, एज़ आ मुज़ाफ़ इलैह। और मुरक्कब वसफ़ी आपने पिछली क्लास में भी पढ़ रखा है कि मुरक्कब वसफ़ी को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कि उनमें यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, यानी सिमिलैरिटी पाई जाती है, इक्वलिटी पाई जाती है। किसमें, जेंडर में। जेंडर का मतलब
मुज़क्कर मुअन्नस यानी मैस्कुलिन फेमिनिन में जिस तरह आपका मौसूफ होगा उसी तरह आपकी सिफत आएगी। जेंडर में नंबर का मतलब वाहिद तस्निया जमा में, अगर मौसूफ वाहिद है तो आपकी सिफत भी वाहिद, इसी तरह वो तस्निया है सिफत भी तस्निया, जमा है तो सिफत भी जमा। जेंडर नंबर दो चीज़ हुई। तीसरा है कि केस, केस का मतलब होता है हालत एराब, जो एराब की सूरत आपकी मौसूफ की बनेगी वही आपकी सिफत की भी बनेगी, हमने पढ़ रखा है पिछली क्लास में। इसी तरह डेफिनिट इंडेफिनिट, यानी डेफिनिट का मतलब मारिफा, इंडेफिनिट का मतलब नकीरा। तो जिस तरह मौसूफ अगर मारिफा है तो आपकी सिफत भी मारिफा, और मौसूफ अगर नकीरा है तो आपकी सिफत भी नकीरा बनेगी। तो यही कह रहे हैं कि मौसूफ और सिफत में, और दोनों बोथ हैव बीन वावेल्ड कसरा विदाउट तनवीन इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर दोनों पे अलिफ लाम दाखिल होगा मौसूफ सिफत पे, तो जाहिर सी बात है अगर अलिफ लाम है तो आखिर में तनवीन नहीं आएगी, अगर अलिफ लाम नहीं है यानी नकीरा है तो आखिर में तनवीन आएगी। तो विद तनवीन इन द सेकंड एग्जाम्पल। अब हम इस एग्जाम्पल को एनालाइज करके आगे मिसाल में टेबल में हम देखते हैं। देखिए, लुक एट द एनालिसिस, यहाँ हम इसकी तहलील करते हैं, इसका विश्लेषण करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? सुउरु, सुउरु माने होता वाल, अलक़लआतिल हमराई, पहली मिसाल में तनवीन नहीं है क्योंकि मौसूफ जो है मारिफा है, इसलिए सिफत भी आपकी मारिफा है। सुउरु क़लआतिल हमराई, ये मौसूफ सिफत से मिल करके मुज़ाफ़िल है, और सुउरु क्या है? आपका मुज़ाफ़। दूसरी मिसाल लीजिए, आपका मुअल्लिमु ए मुज़ाफ़ है और मदरसतिन हुकूमियतिन ए नकीरा है, इसलिए तनवीन है यानी नून का साउंड आ रहा है। तो द टीचर ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल के अध्यापक, सरकारी स्कूल के उस्ताद यानी टीचर। अब हम आगे चलते हैं। आज की क्लास इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। अब हम तीसरी मिसाल लेते हैं। सी वाले कॉलम में हमने पढ़ा था कि मुज़ाफ़िले इज़ा मुरक्कबे इज़ाफ़ी, यानी जो मुज़ाफ़िले होगा वो मुज़ाफ़िले से मिल करके पहले वाले का मुज़ाफ़िले बनेगा। द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड क्या होगा? वो मुज़ाफ़ होगा, और विल हैव अ टेंटेटिव ज़म्मा, जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ पर जो मुज़ाफ़ पे जो ज़म्मा आता है वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि आमिल के एतबार से अगर वो मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ बन रहा है तो उस पर कसरा आएगा, और अगर शुरू में है सिर्फ मुज़ाफ़ बन रहा है तो उस पर ज़म्मा आएगा। द सेकंड वर्ड हैज़ टू पोजीशन, यही कह रहे हैं कि दूसरा वर्ड जो है यानी जो मुज़ाफ़ इले मुज़ाफ़, यानी एक सूरत में वो मुज़ाफ़ इले है पहले का, और दूसरी सूरत में तीसरे वाले का वो मुज़ाफ़ है, तो इस पर दो पोजीशन है। दो पोजीशन क्या है? पहले है कि मुज़ाफ़ है किसका? थर्ड वाले का, यानी उसके बाद जो आ रहा है, और दूसरे है कि वो इट शुड हैव बीन गिवन टेंटेटिव ज़म्मा, इसको ज़म्मा दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप तरकीब में देखेंगे तो पहले वाले का मुज़ाफ़िले है इसलिए ज़म्मा नहीं आ रहा है। एज इट इज़ मुज़ाफ़िले ऑफ द फर्स्ट वर्ड, क्योंकि ये पहले का मुज़ाफ़िले है इसलिए इस पे क्या आ रहा है? कसरा आ रहा है। और इसका लास्ट वर्ड विल बी वावेल्ड, इसका वावेल होगा कसरा, एज इट इज मुज़ाफ़िले यानी मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ इले आल्सो। जी, आपने समझ लिया, पहले मुज़ाफ़ उसके बाद मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिल करके, तो इसमें जो बीच में आ रहा है बीच वाले की दो कंडीशन बनेगी, एक ये तो पहले के एतबार से मुज़ाफ़िले है और दूसरे के एतबार से मुज़ाफ़ है। इस चीज़ को समझना इंतहाई ज़रूरी है। अब हम मिसाल से इसको समझते हैं। देखिए, आपका है क्या? हातिफु
इआदती तबीबी। हातिफु आपका क्या है, हातिफु तरकीब में आपका मुज़ाफ वाक़े हो रहा है। और इआदती की दो सिचुएशन है, इआदती की कितनी सिचुएशन है, दो। अब हातिफु के एतबार से इआदा क्या है, ये मुज़ाफिले है। और अब तबीब के एतबार से जब देखेंगे तो ये मुज़ाफिले ये जो है मुज़ाफ बनेगा। अगर ये हातिफु शुरू में ना होता तो इआदती पे हालत आती रफ़ा की, यानी ज़म्मा पढ़ते। लेकिन क्योंकि ये मुज़ाफिले मुज़ाफ है, यानी पहले वाले का मुज़ाफिले है, दूसरे का मुज़ाफ है, इस चीज़ को समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। दूसरा क्या है, सेरू साआती यदिन, ये साआतिन नहीं होगा, ये गलत है, एक ही आएगा साआती, यानी इस पे आएगा सिर्फ साआती यदिन। सेरू साआती यदिन, सेरू माने होता है प्राइस यानी कीमत, यानी जो रिस्ट वॉच है, यानी जो कलाई वाली घड़ी है उसकी कीमत। तो सेरू क्या है, सेरू आपका मुज़ाफ है सॉरी। और साआती क्या है, ये मुज़ाफ इलैह है सेरू का, और यदीन के एतबार से मुज़ाफ है यदीन का। तो सेरू साआती यदीन, तो सेरू मुज़ाफ, साआती मुज़ाफिले मुज़ाफ, और यदीन जो है मुज़ाफिले। उम्मीद है कि इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज की क्लास इंतहाई इम्पोर्टेंट थी। आज हमने सीखा कि मुरक्कबे वसफ़ी, मुरक्कबे इशारी और मुरक्कबे इज़ाफ़ी, ये तीनों तरकीब में मुज़ाफिले वाक़े होंगे, और वसफ़ी में, इशारी में, और इसी तरह मुरक्कबे इज़ाफ़ी में जो कंडीशन बताई गई, जो हालत बताई गई, जो शुरूत यानी जो शर्तें उसकी बताई गई, वो सब उसमें लागू होंगी, इम्प्लीमेंट होंगी। अब इसको मज़ीद समझने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ताकि जो हमने आज के क्लास में सीखा है पूरी तरह हमारे जहन में ये चीज़ बैठ जाए, ताकि हम आगे भूलें ना, हमारी लर्निंग बाय डूइंग हो। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग PDF डाउनलोड करके एक्सरसाइज पहले खुद कीजिएगा, उसके बाद इसको देख करके आप मिला सकते हैं, ताकि आप खुद इसको सीखें। जब खुद करके सीखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब हम चलते हैं, लिखा हुआ है, क्या लिखा है, किताबु हाज़ल वलदी। अब देखिए इसमें क्या है, पहले आपका मुज़ाफ, उसके बाद जितनी मिसालें आपके दी हैं तो इसमें इशारा मुशारुन इलैह की, यानी मुरक्कबे इशारी की है। इसको ज़हन में रख करके आप इसका ट्रांसलेट कीजिए। मैं इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसकी अक्सर लोगों को ज़रूरत पड़ती है। किताबु हाज़ल वलदी, तो अब किताब क्योंकि ये मुज़ाफ है, तो किताब से पहले हम दा लाएंगे। दा, किताब बुक, क्योंकि निस्बत के लिए इंग्लिश में दो लफ्ज़ आता है, कहीं अपॉस्ट्रोफी एस लगता है और कहीं ऑफ आता है, तो यहाँ ऑफ लाएंगे। द बुक ऑफ हाज़ल वलदी, हाज़ा नज़दीक के लिए इसलिए दिस ही आएगा, वलद के लिए बॉय, द बुक ऑफ दिस बॉय। दूसरा क्या है, ज़ौजतु हाज़र रजुली, ज़ौजतु वाइफ को कहते हैं, बीवी को, ज़ौजतु हाज़र रजुली यानी उस आदमी की बीवी। तो पहले ज़ौजा कहेंगे, द वाइफ, क्योंकि जो मुज़ाफ बनता है उमूमन ऑफ से पहले वाला जो आपका नाउन आता है, उमूमन इंग्लिश लैंग्वेज का नियम है, उसका रूल है कि ऑफ लाते ऑफ करें। ये जो दा है आर्टिकल में से दा लाते ही लाते हैं, तो द वाइफ, द वाइफ, उसके बाद ऑफ। ज़ालिका रजुल, ज़ालिका है
तो डेट आएगा, डेट। रजुल मैन। तीसरा क्या है, मालिकु हादत दुकानी, दुकान मतलब शॉप, यानी इस दुकान का मालिक यानी ऑनर। तो हम क्या लिखेंगे, द ऑनर ऑफ, हादा है तो दिस ही आएगा, और दुकान के लिए इंग्लिश में शॉप का लफ्ज आता, शॉप। तीसरा देखते हैं, हकीबतु तिलकल मरआ, हकीबा बैग के लिए, और तिलका मरा इसमें इशारा मुशार इलैह, मरा मतलब ओमैन, हकीबा मतलब बैग, द बैग ऑफ। अब तिलका है तो डेट आएगा, मरा के लिए ओमेन जी। उसके बाद है उज़ू हाज़िहिल मक्तबा, मक्तबा लाइब्रेरी के लिए यूज़ होता है, यानी पुस्तकालय, और उज़ून माने होता है मेंबर, तो द मेंबर, द मेंबर ऑफ, और हाज़िही है तो दिस आएगा, मक्तबा लाइब्रेरी। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे वाले एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें क्या है, हमारे सामने वही है, शुरू में आपका मुज़ाफ है, उसके बाद इसमें इशारा मुशारुन इलैह दोनों मिल करके, यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद नाउन है, दोनों मिल करके आपकी मुज़ाफ इलैह बनेंगे। वही तरकीब है जो हमने पढ़ रखी है। अब यहाँ बस है कि इंग्लिश है, इसको हमें अरबिक में तब्दील करना है वाविल साइन यानी एराब के साथ। अब हम लेते हैं पहला सेंटेंस, पहला जुमला, द मिल्क ऑफ दिस काऊ, यानी काऊ मतलब गाय, इस गाय का दूध, दूध के लिए हलीब, हलीबू मुज़ाफ बन गया, और गाय के लिए बकरा का लफ्ज़ आता है, कुरान करीम में भी है पहले पारे में, तो हाज़िहिल अल बकरा, बकरा मतलब गाय, हाज़िहिल बकराती। अब दूसरा क्या है, द टाइम ऑफ दैट ट्रेन, टाइम के लिए वक्त, अब क्योंकि डेट है इसलिए ज़ालिका आएगा, और ट्रेन के लिए हम कहते हैं क़ितारुन, वक्तु ज़ालिकल क़ितार, वक्तु ज़ालिकल क़ितारी। द टी ऑफ डेट शॉप, शॉप मतलब दुकान, और टी मतलब शायुन, शायुन मतलब चाय, शायु, शायु ऑफ डेट, डेट है तो ज़ालिका आएगा, ज़ालिका आता है मुज़क्कर के लिए, हमें मालूम है। मुअन्नस के लिए क्या आएगा, तिलका, इसको आप ज़हन में रखिएगा। इसी तरह हादा हादी है। द प्राइस ऑफ दिस क्लॉथ, प्राइस यानी कीमत के लिए हमने मिसाल में पढ़ भी रखा है, इसके लिए आता है सेरुन, सेरु। दिस क्लॉथ, दिस क्लॉथ के लिए सौबुन का लफ्ज़ आता है, और कभी कभी कुमाश भी यूज़ होता है, आप सौबुन ही याद रखिए क्योंकि शुरू स्टेज में यही याद रखें ही काफ़ी है। सेरु हाज़ा सौब। द टेस्ट ऑफ डेट फूड, टेस्ट मतलब जायका, जायका के लिए अरबिक में आता है तामु, डेट फूड, डेट, डेट के लिए ज़ालिका, और फूड के लिए ताम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आप पहले करके
इससे रिवीजन कीजिएगा, पहले खुद कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरी एक्सरसाइज है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें क्या है, इससे पहले हमने इसमें इशारा मुशारुन इलैह की एक्सरसाइज कर ली, इंग्लिश में भी, उर्दू में सॉरी, इंग्लिश में भी और अरबिक में भी। अब दूसरा हमने पढ़ा था कि मुरक्कब वसफ़ी आपका तरकीब में क्या बनेगा, मुदाफिले बनेगा। अब इसकी भी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं ताकि हम अच्छी तरह इसको सीख लें। अब चलते हैं। तालिबु अस्सफ़ी अल-ख़ामिसी, तो पहले हम तालिबु कहेंगे। तालिबु के लिए कौन सा लफ्ज़ आता है, स्टूडेंट। तो द स्टूडेंट निस्बत के लिए हम इंग्लिश में ऑफ लाते हैं। असफ़ अल-ख़ामिस यानी पांचवी जमात, तो क्या कहेंगे, फिफ्थ क्लास। स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ क्लास। और यहाँ हम द भी यूज़ कर सकते हैं, द स्टूडेंट ऑफ द फिफ्थ क्लास। इमारतु अस्सफ़ारा अल-हिंदिया, सफ़ारा एम्बेसी के लिए, यानी जो बाहर की कंट्री होती हैं वो बायलेटरल रिलेशन कायम करने के लिए, आपस में ट्रेड वगैरह के लिए, हर एक कंट्री का, हर एक मुल्क में, हर एक कंट्री में एक एम्बेसी होती है, उसमें एम्बेसडर होता है जो अपने बायलेटरल रिलेशन को डील करता है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ दिल्ली में भी अक्सर कंट्री के, जितनी कंट्री हैं अक्सर कंट्री की एम्बेसी है। तो वही इमारतु मतलब बिल्डिंग के लिए इमारत का लफ्ज़ आता है। द बिल्डिंग अब ऑफ लाएंगे, ऑफ अस्सफ़ारा अल-हिंदिया, हिंदिया इंडियन, और एम्बेसी, इसमें जो ऑफिसर होता है उसको एम्बेसडर कहते हैं। हर एक कंट्री का, हर एक दूसरे कंट्री में एम्बेसी होती है। रईस अल-क़िस्म अल-अरबी, रईसु के लिए हेड का लफ्ज़ आता है, द हेड ऑफ अल-क़िस्म अल-अरबी यानी अरबिक डिपार्टमेंट। आगे है मसऊल अल-वज़ारा अल-ख़ारिजिया, मसूल ऑफिसर के लिए कहते हैं, इसके लिए इंग्लिश ज़ुबान में ऑफिशियल लफ्ज़ आता है, द ऑफ आएगा। अल-वज़ारा अल-ख़ारिजिया यानी फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री। आगे है हकीबतु मुसाफिरिन अजनबीजिन, अजनबी मतलब फॉरेन कंट्री का, हकीबा बैग, द बैग ऑफ मुसाफिरिन अजनबीजिन, दोनों मौसूफ सिफत हैं, फॉरेन मुसाफिर ट्रेवलर यानी सफ़र करने वाला। अब हम अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। आज थोड़ा एक्सरसाइज लंबी है क्योंकि तीन चीज़ों को हमें समझना था। पहले में हमने समझा इसमें इशारा मुशारुन इलैह, दूसरे में मौसूफ सिफत। अब हमने अरबिक में किया। अब दूसरा है कि इंग्लिश में वही तरकीब है, इसमें मौसूफ सिफत। अब इसको हम अरबिक में ट्रांसलेट करेंगे एराब के साथ। तो द टिकट ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन, टिकट के लिए अरबिक में आता है तस्किरतुन, तस्किरतु एन एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि नकिरा है मौसूफ सिफत,
तस्किरतु क़ितारिन, और एक्सप्रेस यानी तेज़ रफ्तार तो सरीइन। आगे चलते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक लैंग्वेज, डिपार्टमेंट के लिए अरबिक में क़िस्मुन का लफ्ज़ आता है। क़िस्म, अरबिक लैंग्वेज अल-लुग़ा अल-अरबिया, मुज़ाफ़िला इसलिए ज़ेर आएगा। आगे है द एम्प्लॉई ऑफ अ फॉरेन कंपनी, कोई एक बाहर की कंपनी है, उसमें काम करने वाले यानी मज़दूर, एम्प्लॉई जो उसमें जॉब करते हैं, उसके लिए आता है मुअज़्ज़फ़ुन। मुअज़्ज़फ़ु अब क्या है, फॉरेन, फॉरेन कंपनी, आ है इसलिए नकिरा आएगा। कंपनी के लिए शरीका का लफ्ज़ आता है, शरीकतुन, शरी क्योंकि मुज़ाफ़िल है इसलिए शरीकतिन होगा। फॉरेन के लिए अजनबियतिन, अजनबियतिन। आगे है द टीचर ऑफ द ओपन स्कूल, दो स्कूल होते हैं जिसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, जो डिस्टेंस लर्निंग के, जैसे आपके इग्नू हैं, आपके NIOS खुला है, वही ओपन स्कूल होता है जिसमें आप घर रह के पढ़ाई कर सकते हैं। द टीचर मतलब मुदर्रिस, मुदर्रिसु अल मदरसा क्योंकि दा है, अल मफ्तूह। आगे है द प्राइस ऑफ एन इंग्लिश डिक्शनरी, प्राइस के लिए हमने पढ़ रखा है कि सेरुन का लफ्ज़ आता है। एन इंग्लिश डिक्शनरी, डिक्शनरी के लिए अरबिक ज़ुबान में कामूस का लफ्ज़ आता है, कामूसिन इंग्लिश इंजलीज़िजिन, इंजलीज़िजिन। अब हम आगे चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे, वही चीज़। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, हमने इसमें इशारा मुशारुल इलैह पढ़ लिया, हमने मौसूफ सिफत पढ़ लिया। अब हम पांचवी, इसके बाद छठी भी होगी, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, मुज़ाफ मुज़ाफ़िले की तरकीब, यानी मुज़ाफ मुज़ाफ़िले मिल करके मुज़ाफ़िले होगा पहले वाले मुज़ाफ का, यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो सय्यारतु अमीदुल कुल्लिया, सय्यारा मतलब कार, तो हम लिखेंगे द कार, कार हो गया। ऑफ अमीदुल कुल्लिया, ऑफ द डीन ऑफ कॉलेज, अमीद के लिए डीन का लफ्ज़ आता है। हातिफु रईसिल क़िस्मी, हातिफ के लिए हमने पढ़ रखा है, फ़ून का लफ्ज़ आता है। द फोन ऑफ रईसुल क़िस्म, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आगे है ग़िलाफ़ु दफ्तरी तमरीनिन, यानी जो तमरीन के लिए नोटबुक है उसका ग़िलाफ़ यानी ऊपर का कवर, तो ग़िलाफ़ के लिए हम कवर का लफ्ज़ ले आते हैं। दफ्तरी तमरीनिन, दफ्तरी तमरीनिन के लिए हम ले आते हैं ऑफ द एक्सरसाइज नोटबुक,
अब आगे है शिद्दतु हरारति शम्सी, यानी सूरज की गर्मी की शिद्दत। तो हरारति शम्सी, शिद्दतु हरारति शम्सी के लिए हम लाते हैं, इसके लिए एक लफ्ज आता है द सल्ट्रीनेस, यानी हरारति शम्सी, द sultriness of the sun। क्योंकि बिल्कुल हम उस तरह का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे एकदम लफ्ज़ ब लफ्ज़, क्योंकि इंग्लिश में इस तरह से यूज़ होता है सल्ट्रीनेस ऑफ द सन, यानी शिद्दत हरारत शम्स के लिए आता है। तौज़ीउ जाइज़तिल मुसाबका, तौज़ीउ मतलब होता है बांटना, यानी कोई कंपटीशन हुआ उसके बाद जो इनाम मुतय्यन हुए उसको आपस में बांटे गए, तो तौज़ीउ। तो तौज़ीउ के लिए द डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जाइज़तिल मुसाबका, ऑफ जाइज़तिल मुसाबका के लिए हम कहेंगे कंपटीशन, कंपटीशन और जायज़ा अवार्ड। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आखिर में चलते हैं, वही मुदाफ मुदाफिले वाली तरकीब मुरक्कब इज़ाफ़ी, इंग्लिश में है, इसको हम अरबिक में ट्रांसलेट करेंगे एराब के साथ। द स्मेल ऑफ आ जास्मीन फ्लावर, स्मेल के लिए राइहतुन का लफ्ज़ आता है, राइहतु जास्मीन फ्लावर, जास्मीन एक फूल का नाम है। ज़हरतु, ज़हरतु ने ज़हरती आएगा क्योंकि मुज़ाफिले मुज़ाफ बनेगा। जास्मीन के लिए अल यास्मीन। आगे है द कलर ऑफ हम्माद शू, हम्माद किसी का नाम है। कलर के लिए आता है लौनु। हेज़ाई, हेज़ाउन माने जूता, शूज। उसके बाद हेज़ाई हम्माद। जी आगे है द बिल्डिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, बिल्डिंग के लिए हमने पढ़ा है पहले भी, इमारा। द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस वेज़ारा, वेज़ारतुल अदली, अदल माने जस्टिस, इंसाफ, तो हम पढ़ेंगे वेज़ारती अल अदली। आगे है द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टी, नेम के लिए इस्मु, मेंबर ऑफ द पार्टी, मेंबर उज़वी अल हिज़्बी। आगे है द गेट ऑफ द हामिद्स हाउस, यानी हामिद के घर का दरवाज़ा। गेट के लिए बाबुन, बाबू बैती, बैती हामिदिन। बस आज के लिए इतना ही। आज की क्लास थोड़ा सा लंबी हुई लेकिन टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको जानना, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी था। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। अब जाने से पहले आपसे बस एक दरख्वास्त यही है कि PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसी के साथ आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक भी करते हुए जाएं, कमेंट भी करें, इसको दोस्तों में शेयर करें, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बस आज के लिए इतना ही।
انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ مع السلامہ، الی اللقاء۔